हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ तान्या। सो वेलकम बैक टू माय चैनल तान्या टॉक्स एंड रिएक्शन। तो फिर मैं हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। ये वीडियो हमारे एक ब्रेव सोल्जर के बारे में है, तो जिनके बारे में मैंने कल एक मूवी के ट्रेलर पे भी रिएक्ट किया था। वो मूवी उनसे रिलेटेड थी, तो उन्हीं के बारे में आज भी कुछ और फैक्ट्स लेकर आई हूँ। तो उसको देखेंगे, फिर हम उसके बारे में रिएक्ट करेंगे। समझ तो गए होंगे आप लोग मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की बात कर रही हूँ, जो एक बहुत ब्रेव शोल्डर थे, जिन्होंने 26/11 में जो हमला मुंबई पे हमला हुआ था, उसमें जो आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हो गए थे, वीर गति को प्राप्त हो गए थे। वी एज ए इंडियन आर वेरी प्राउड ऑफ हिम। तो इस वीडियो को देखेंगे। ये वीडियो द क्विंट की है। वीडियो का जो ओरिजिनल लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो देखना स्टार्ट करते हैं। वीडियो देखने के बाद इस बारे में बात करेंगे। What was 26/11 and what was a Mumbai incident? Who was Sandeep Krishna? There are people like that now also. Because it's India, no, see, it's a democracy. So we have all the freedom to forget also. Sandeep only told us to watch first. So I was not knowing what is happening. No, we were not tuned into TV. Some people came from Pakistan and then they started shooting and then doing that. No, I could not believe that. That was the last conversation we had. He was prepared to go. I had the intuition that he cannot sit at NSC campus there. He also would have joined this thing. But I never expected that. No, so something like this will happen. So I thought it was a small operation and it will be over in any time. We are not prepared for that. No parent will be prepared for that. See, maximum we will see that okay, he may get injured. बात सही है. You are not ready for that for a total loss. One of the person saved by him. He said that how he operated. So the fearless, his face was totally fearless, and then he even referred that, sir, have you seen Mahavishnu's face in the calendar? His face was with that calm. He was not panicked at all, and then he took time to check the very minute details as to what is your this thing. Are you thirsty? Are you hungry? They saved the last hostage also. The last hostage still is with me, and then he comes on 26/11, sit with us where Sandeep had fallen every year. The person who was saved by him was hit by 7 bullets. Even Sandeep also would not have expected him to survive, but he told his team to evacuate him, and then he went up. So that also we have learned from the people those who are behind him. And then he knew that it is very dangerous to go up, and then he told them that don't come up, I will handle them. His own unit people, they say that I would not have done like Sandeep sir what he has done. When a soldier himself is telling that he has done something great which I could not have done, that is the award beyond everything. बात सही है. A good memorial is actually should be in the minds of people, those who are more concerned about it. Many roads dedicated in the names of martyrs and leaders or something like that, but people will use the old name. And some people with that kind of an honor, they write the full name. I appreciate that. That is enough. That compensate what is it. Major Sandeep Unnikrishnan Road. Sometimes I feel that I have not done enough for him as a father. I always feel that I have not guided him properly. I could have taught him the nuances of a little bit of selfishness also. तो फ्रेंड्स, वीडियो हुई ख़त्म और वीडियो बहुत इमोशनल थी। एक फादर की बात थी कि वो क्या फील करते अपने बेटे के बारे में। उन्होंने एक बात बहुत सही कही
कि जो ट्रू मेमोरियल है वो तो ये नहीं कि रोड बना दिए या स्कल्पचर बना दिए या बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स उसके नाम बना दिए। रियल मेमोरियल तो वो है कि जब लोग उनके बारे में उनको याद रखें। और वो बोल रहे थे कि बहुत से लोग ऐसे हैं, मतलब अफसोस की बात है कि बहुत से लोग ऐसे हैं, उनको उनके बारे में पता नहीं है। तो दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग कि हमें पता होना चाहिए। ये एक शर्म की बात है कि हमें नहीं पता है। हमें अपने ब्रेव लीडर्स, ब्रेव हीरोज़, ये हमारे हीरोज़ ही हैं, हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। They are much more important than the person we see on television for the entertainment. I'm not defaming कि किसी का रोल कम है, किसी का रोल ज़्यादा है, सब अपने अपने पार्ट का रोल प्ले कर रहे हैं। बट येट जो एक सैनिक करते हैं, उनका जो रोल है, जो काम करते हैं, उन्होंने अल्टीमेट सेक्रीफाइस दिया है, उनके रोल को तो हमें एटलीस्ट नहीं भूलना चाहिए। और उनके क्या, हमें किसी भी सैनिक के रोल को नहीं भूलना चाहिए। उनका कंट्रीब्यूशन जो होता है वो इनवैल्यूएबल होता है और हमें उन्हें हमेशा वैल्यू और हमेशा ऑनर करना चाहिए। और दूसरी बात, मतलब वो बता रहे थे कि कैसे, मतलब एक एक सोल्जर का दिमाग कैसे काम करता है, कैसे ट्रेंड होते हैं वो, और उनके दिल के अंदर कितनी देशभक्ति होती है। कितने पैनिक सिचुएशन में भी, जब सब कुछ अफरा तफरी बच जाए, चारों तरफ टेररिस्ट है, फिर भी वो जितने लोग होस्ट है, जितने लोग पकड़े गए हैं, जितने लोग कैद में, सबसे आराम से बात करें, सबको खाना पानी पूछ रहे। उस सिचुएशन में आप सोचो वो सिचुएशन कितनी इंटेंस होगी। हर मिनट, अगली मिनट किसी की जान जा सकती है। तो कितना काम, कितना उन लोगों का माइंड वेल ट्रेंड और वेल प्रिपेयर्ड होता है सब सिचुएशन के लिए। और उनके अंदर कितनी वो ब्रेव और कितने सेल्फिश, मतलब क्या मैं सेल्फिश बोलूँ, कितने सेल्फलेसनेस वाला वो एक्ट करते हैं। वो बिल्कुल भी अपने बारे में नहीं सोचते। तो उनके फादर ने ये चीज़ मेंशन भी की कि मुझे लगता है कहीं कहीं कि मैंने उन्हें अच्छे से नहीं सिखाया। अगर मैं अपने बेटे को थोड़ा सेल्फिश होने के फ़ायदे सिखाता तो आज ये नहीं होता। क्योंकि जो एक सोल्जर का एक्ट होता है, जो एक सैनिक का एक्ट होता है, वो उसमें वो अपनी ना चिंता करते हुए, अपनी फैमिली की चिंता ना करते हुए, वो अपने देश की चिंता करता है, अपने देश के लोगों की चिंता करता है। और हर सैनिक ऐसा ही होता है। और अभी तो जो मेजर संदीप उनकृष्णन की बात है, हमें जब भी ये दिन आता है या इस और उस दिन तो हम को बहुत सैड फील होता है और पूरे साल हम उन्हें रिमेम्बर करते हैं। पर ये जब मूवी का ट्रेलर देखा है तो चीज़ें एक आराम से, मतलब एक होता है ना कि हिट लाइन में आ गई, हम लोग जानने लगे। मुझे खुशी है, मुझे खुशी है कि जो बहुत से लोग जो पहले नहीं जानते तब उनको जानने लगे हैं। इस तरह की मूवीज़ और आनी चाहिए, इस तरह की चीज़ों के बारे में और बात होनी चाहिए। देखिए, इससे दो फायदे, एक तो हमें अपने हीरोज़ के बारे में पता चलता है जिन्होंने हमारे लिए सेक्रीफाइस दिया है, अल्टीमेट सेक्रीफाइस दिया है। दूसरा, इससे हम मोटिवेट होते हैं, इससे हम इंस्पायर होते हैं, इससे हमें पैट्रियटिज्म की फीलिंग आती है कि ये कंट्री, कि हमें कुछ करना है अपनी कंट्री, अपने सोसाइटी के लिए। बिकॉज कुछ लोग ऐसे जिन्होंने बहुत हाई स्टैंडर्ड सेट कर लिया है, भाई उनके बराबर नहीं तो कम से कम कुछ तो कर लो उनके जैसा। भाई हम उनके बराबर नहीं पहुंच सकते पर कुछ तो कर सकते हैं। जितना हमारे पास कैपेबिलिटी है, एटलीस्ट वी कैन डू आवर बेस्ट। तो हमें अपना बेस्ट ही करना है इस केस में। और पूरी, मतलब ये, मतलब एक होता है कि वो तो मतलब चले गए, ही इज़ नो मोर, लेकिन उनकी फैमिली हर साल, हर मोमेंट, हर पल उस पेन को फील करती होगी। उस फादर के जो वो बोल रहे थे, उनकी आंखों में प्राउड था, पर एक साथ साथ में एक अनबियरेबल पेन था जिसको वो बियर नहीं कर पा रहे, इसको वो छुपाने के लिए स्माइल कर रहे हैं। तो इस तरह की जो कंप्लीट ये पूरी वीडियो मैंने देखा, मुझे ये चीज़ फील हुआ, मतलब बहुत इमोशनल मुझे वीडियो लग रहा था। तो अगर तो इस